हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सो वेलकम बैक अगेन टू मैक्सिमस. मैक्सिमस, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? So guys, in today's class we are going to start the fifth lectures of triangles, right? So in today's class we are going to learn about the similar triangles or similar triangles में this is the fifth lecture, ठीक है? So in fifth lecture we are going to learn about the हम जो theorem पढ़ने वाले हैं आफ्टर SAS ट्रिपल SAS हमने लर्न कर लिया था. एंड इन दिस lecture we are going to learn about the ratio of area of similar triangles, right? So that we are going to learn. So let's attack the topic. So these all things you already know the difference between similar figures, and this is the congruent figures. This already you known to all of you. So if you don't know these things, you can watch our previous classes so you can learn this thing, right? And this you already know what is the congruent triangles. In congruent triangles all the angles of both the triangles are equal and all the sides of both the triangles are equal. And what is the similar triangles? In case of similar triangles, all the angles of both the triangles are similar, therefore their sides are proportionate, ठीक है? So that is all about the similar triangles. So in today's class we are going to learn about the ratio of area of a similar triangles, right? So what is the statement of a theorem? The statement of a theorem says the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides, right? मतलब it's given that the ABC and DEF are the two similar triangles, right? मतलब अगर सिमिलर ट्रायंगल है मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल सी एंगल एफ के बराबर है. इट्स ऑलरेडी गिवन बिकॉज बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है? अभी क्या हमें प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का अगर रेशियो निकालूँ तो इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे. सो दिस एक्चुअली वी हैव टू प्रूफ, ठीक है? चलो ठीक है. सो वी कैन हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे. सो दिस इज गिवन और हमें क्या एरिया निकालना है. तो अगर हमें एरिया निकालना है तो फॉर द एरिया लेट्स ड्रॉ एल्टीट्यूड फर्स्ट, है ना? कुछ कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. सो लेट्स ड्रॉ दिस M perpendicular to BC, right? And in case of this let's draw this N perpendicular perpendicular to EF, right? हमने ये perpendicular ड्रॉ कर दिया, ठीक है? So now we have this. तो वो हमें पास दिया क्या हुआ है. So you can see there are two similar triangles. What all things are given? So triangle, so this is given, triangle ABC is similar to triangle DEF, ठीक है? and if both are similar that means angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, and angle C is equals to angle F, है ना? and what all other things are given. और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो विद द BPT what we can say कि AB is proportional to side AB is proportional to side DE is equals to side BC is proportional to side EF is equals to side AC is proportional to side DF, ठीक है? दिस ऑल थिंग्स आर गिवन. और ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है. तो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है कि M परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एरिया की बात हो रही है, ठीक है? तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है. दिस AM परपेंडिकुलर टू BC पहला कंस्ट्रक्शन है, एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन है दिस DN इज परपेंडिकुलर टू BF, ठीक है? बिकॉज दिस विल हेल्प टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूफ. हमें प्रूफ क्या करना है. तो हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू
साइड के स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ऑफ ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आ गए। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन इज रिटन हियर। कंस्ट्रक्शन हमने क्या ड्रॉ किया, सो दैट ऑल आर हियर एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ दैट ऑल थिंग्स आर गिवन हियर, राइट। नाउ व्हाट यू कैन सी विथ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, है ना, हमें क्या एरिया फाइंड आउट करना है इन दोनों ट्रायंगल का। सो व्हाट विल बी द एरिया, नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना हो ट्रायंगल ए बी सी का तो क्या होगा, एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी ई एफ का अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ अल्टीट्यूड इनटू बेस, करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस थिंग। तो ये क्या होगा, तो हाफ अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड यू हैव विद ए एम एंड बेस क्या है, तो बेस इज बी सी, करेक्ट, एंड डी एफ का क्या होगा एरिया, सो एफ डी एरिया ऑफ डी एफ विल बी हाफ इनटू अल्टीट्यूड क्या है, तो अल्टीट्यूड इज डी एन एंड बेस इज व्हाट, बेस इज ई एफ। सो फ्रॉम दिस यू कैन सी ये दोनों कैंसिल हो गए और मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास बचा ए एम अपॉन ऑफ ए एम इंटू ऑफ बी सी अपॉन ऑफ डी एन अपॉन ऑफ ई एफ। सो दिस वी हैव रिमेन, हमें हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास ये बचा। सो यू कैन टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। और इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, अभी क्या देखो हमने क्या एल्टीट्यूड किस पे ड्रॉ किया, तो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है दिस बी सी पे ड्रॉ किया है। सिमिलर अगर एल्टीट्यूड में क्या करूं, अगर मैं एल्टीट्यूड को अगर यहाँ पे ड्रॉ किया होता है ना, बी सी से, है ना, या एम के जगह पी पे ड्रॉ कर दिया होता है ना, ए सी पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया होता है, एरिया का ट्रायंगल क्या निकल के आता, वो निकल के आता एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बी सी अपॉन ऑफ ए सी निकल के आता, ऐसा निकल के आता है ना। और यहाँ से यहाँ पे मैं ड्रॉ करता तो क्या निकल के आता, लेट्स टेक दिस इज क्यू, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है हाफ ऑफ ई क्यू अपॉन ऑफ डी एफ होता है, ठीक है। इस तरीके से एरिया निकल के आता है। और अगर इस तरीके से एरिया निकल के आता दैट मीन्स हमें क्या समझ में आता है ना कि और इस सिमिलरली अगर ये एल्टीट्यूड अगर ए बी पे ड्रॉ करता तो यहाँ पे होता कुछ, लेट्स टेक दिस इज जेड एंड यहाँ से अगर मैं कुछ करता तो लेट्स टेक दिस इज वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता तो उसका एरिया क्या निकल के आता, जितने भी सारे एरिया निकल के आते तो वो सारे एरिया तो इक्वल ही होते क्योंकि ट्रायंगल तो वही है ना। तो इस तरीके से ये क्या निकल के आता है ना, वी ऑलरेडी नो कि जो सिमिलर ट्रायंगल होता है, वेयर इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो एरिया है ना, जब हम किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन दैट केस एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल विल बी सेम, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, है ना। अब इस चीज़ को ट्रायंगल में देखोगे बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, सो वन प्रॉपर्टी वी ऑल्सो नो, क्या प्रॉपर्टी होता है कि हमने तो इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ ना, ये वाले इस पार्ट को वी आर गोइंग टू कवर लेटर ऑन, ठीक है, इस पार्ट को हम लेटर ऑन वी आर गोइंग टू कवर। अभी सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी और होती है, क्योंकि ऑल थ्री साइड्स आर वी नो ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ये ए एम अपॉन ऑफ डी एन ये भी प्रोपोर्शनल होगा बी सी अपॉन ऑफ ई एफ के, ये भी प्रोपोर्शनल होगा, है ना। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर again in similar triangles we already know, है ना, this am is also a side, am proportional to dn होगा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, so this will proportional to bc proportional to ef होगा, है ना। एंड और अगर ये ऐसा है so this is the equation number 4 हो जाएगा, है ना। एंड वी कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ am अपॉन ऑफ dn हियर, तो am अपॉन ऑफ dn मेरे पास यहाँ पे है ना। So if you put the value of am upon of dm, so what will get, so this will be bc into of bc upon of ef into of ef, so thereafter what will get, will get bc square upon of ef square, है ना। तो पहला पार्ट जो है बेस वाले का, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा है, जिस साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उस साइड के स्क्वायर के बराबर तो मुझे निकल नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया ये चीज़, एक्सक्यूज मी, राइट। तो हमने क्या किया, सो जिस हमने बी सी साइड पे एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है,
एंड बाय दिस वे हमें क्या निकल के आया कि बी सी स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अपॉन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर एंड ई एफ स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट, एक वाला पार्ट तो निकल के आ गया, ठीक है। नाउ अगर अपन परपेंडिकुलर, सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे करें P एंड सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर टू मैं यहाँ पे कर दूँ, है ना, दिस इज द Q, तो यहाँ पे भी ये भी निकल के आएगा दिस बी डी स्क्वायर अपॉन ऑफ ए सी स्क्वायर। तो अपने को क्या निकल के आएगा, तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा दैट ए सी स्क्वायर एंड डी एफ स्क्वायर। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर टू इस साइड करूँगा तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा। सिमिलरली इफ एल परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर करूँगा ए बी साइड पर परपेंडिकुलर करूँगा ई से, तो हमें क्या निकल के आएगा, तो हमें ये वाला पोर्शन निकल के आएगा सिमिलरली, है ना। सो देयरफॉर सिमिलरली, है ना, अगर, है ना, इफ वी अगर इसको इस तरीके से करें, है ना, तो सिमिलरली है ना, इफ, है ना, अगर अपन व्हाट वी कैन डू बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी करूँ, बी पी परपेंडिकुलर टू ए सी करें, है ना, तो क्या निकल के आएगा, सो व्हाट वी विल गेट this AC square upon of DF square. So what we will get, this we will get AC square upon of EF square, right? Similarly this EQ, this EQ perpendicular to CQ perpendicular to AB करूँ, similarly CQ perpendicular to AB करूँ, so what we will get, this ratio AB square upon of DA square, right? This AB square upon of DE square, this thing we will get, है ना। Therefore what we can say, area of a triangle ABC upon area of a triangle DEF is equals to AB square upon of DE square is equals to AC square upon of EF square is equals to AB square upon of DE square. So by that way we can say this thing, right? होप आपको ये समझ में आ गया होगा रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। सो बाय दैट वे वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम, राइट। So let's see what is the next theorem we have. The next theorem we have is if the area of two similar triangles are equal, then the triangles are congruent, ठीक, ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया जो है इक्वल है। इफ द एरिया आर इक्वल मतलब तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस इज M एंड दिस इज N, ठीक है। So area, if the area of two similar triangles, so this is given, so what is given, so it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF. So since both the triangles are similar, therefore we can say angle A is equals to angle D, right, angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle F, है ना, this thing we can say. Now what again one thing is given, that given thing is that area जो है वो भी क्या है, इक्वल है। and what other thing are given, so given is that area of triangle ABC is equals to area of a triangle DEF, है ना। and we already know, है ना, क्या हमने क्या लर्न किया प्रीवियस थ्योरम, हमने क्या लर्न किया, if the area of if there is two similar triangles then the area of triangle ABC will be proportional to क्या होगा, area of a triangle ABC upon of ratio of area of triangle ABC upon of ratio of triangle ABC DEF क्या होगा, DEF. So this will be जो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के बराबर होंगे, दैट मीन्स क्या होगा, सो दिस इज AB स्क्वायर अपॉन ऑफ DE स्क्वायर है इक्वल्स टू BC स्क्वायर है अपॉन ऑफ EF स्क्वायर है ना, और क्या है, एंड दिस AC स्क्वायर है एंड दिस इज द DF स्क्वायर है। सो दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, है ना, बाय रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। सो इफ दिस इज क्लियर तो ये अगर समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर
ठीक है, एंड एरिया आर इक्वल, डैट मीन्स क्या हुआ, एरिया अगर इक्वल है डैट मीन्स क्या हुआ, दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो अगर मैं निकालूँ ट्रायंगल ए बी सी का एंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस डी ई एफ निकालूँ तो रेशियो क्या होगा, तो रेशियो विल बी 1, देयरफॉर व्हाट वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो अगर 1 होगा दैट मीन्स रेशियो अगर 1 है तो अगर ये साइड का रेशियो मैं निकालूँ मतलब कि ए बी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी एफ स्क्वायर, so this will be also equals to n, है ना. If this is equals to 1, therefore what we can say ab square is equals to df square, है ना. और अगर ऐसा कुछ है that means we can say ab equals to df. Are you getting this thing? और अगर ऐसा कुछ है तो therefore bc will be also equals to ef, है ना, इस तरीके से, and ac will be also equals to df. Therefore what we can say, therefore we can say ab equals to df, ab equals to DE, BC equals to EF and AC equals to DF, है ना. So all three sides are equal, and if all three sides are equal and all three angles are equal, so therefore what we can say, both the triangles are congruent, है ना. All three sides and all three angles are equal, therefore we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF. राइट, समझ में आया, एंड दिस इज क्लियर, समझ में आया है ना क्या दिया हुआ था. सो दिस इज गिवन दैट देयर इज टू सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना, देयर इज टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, एंड इफ द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, इफ दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर सिमिलर इक्वल, राइट. और ऑल्सो दूसरा क्या दिया होता है, एरिया इज इक्वल. इफ द एरिया इज इक्वल मतलब रेशियो इनका क्या होगा, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो वो तो 1 होगा. एंड दिस बाय दिस, है ना, ये हम जानते हैं ना, रेशियो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, लास्ट थ्योरम में हमने ये चीज़ लर्न किया है ना. सो दिस थिंग वी लर्न. तो अगर इस तरीके से है, अगर एरिया अगर रेशियो 1 है दैट मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी, ए बी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी एफ स्क्वायर डी ई स्क्वायर विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1. देयरफॉर सो वी विल गेट ए बी इक्वल्स टू डी. Similarly DC BC will be equals to EF, similarly AC will be equals to DF. So by that way we can say all three sides are also equal. So on the basis of this assumption we can say all the sides are equal and all the angles are equal, therefore both the triangles are congruent. Do you understand this thing? समझ में आया? और ये समझ में आया तो let's try to do questions related to these two theorems. चलो समझते हैं questions. The first question we have, if the area of two similar triangles are in the ratio of 25:64, find the ratio of their corresponding sides, right. तो अगर हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ट्रायंगल कौन सा, लेट्स टेक एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल डी ई एफ. ऐसा दो ट्रायंगल है, तो इनका क्या दिया, एरिया का रेशियो दिया हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज गिवन. सो दिस इज हाउ मच, रेशियो कितना है, सो दिस इज 25/64 है ना, ऐसा दिया हुआ है, राइट. और ऐसा दिया हुआ है तो हमने क्या थियरम लर्न किया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. दिस भी हमने लर्न किया. हमने क्या लर्न किया था थियरम में, सो दिस ए बी सी अपॉन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू, हमने क्या लर्न किया था, तो दिस इज ए बी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एफ स्क्वायर अपॉन ऑफ ए बी सी अपॉन ऑफ ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी ई एफ तो डी एफ एंड दिस इज द डी एफ स्क्वायर. ठीक है, ऐसा हमने लर्न किया है. अगर हमने ऐसा लर्न किया है दैट मीन्स क्या हुआ, ये तीनों के बराबर क्या होगा, तो वो हो गया. सो दैट मीन्स वी कैन राइट ए बी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ऑफ ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, सो इज इक्वल्स टू 25/64. ऐसा लिख सकते हैं. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, तो ये तो बेसिकली क्या है 5/8 का स्क्वायर है. एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज ये तो 5/8 का स्क्वायर है ना. और अगर ये है तो स्क्वायर कैंसिल करोगे, देयरफॉर व्हाट यू विल गेट ए बी कितना मिलेगा, ए बी आपको रेशियो कितना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. देयरफॉर ए बी अपॉन ऑफ डी ई
कितना रेशियो है, 5:8 रेशियो है, इज इक्वल्स टू कितना है, so दिस विल बी बी सी अपॉन ऑफ ई एफ हो जाएगा, देयरफॉर ये कितना होगा, दिस विल बी ए सी अपॉन ऑफ डी एफ होगा। तो रेशियो कितना, साइड्स का रेशियो कितना होगा, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ रेशियो कितना होगा, 5/8 होगा। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। समझ में आया, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थ्योरम। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द थ्योरम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो अगर ये समझ में आया तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन वी हैव द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एरिया कौन, ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, तो दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, है ना। अब इनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज गिवन सिमिलर ट्रायंगल्स, दिस इज गिवन सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया कितना दिया हुआ है, एक का एरिया 81 है और दूसरे का एरिया 49 है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस कैन रिटर्न एज ए 7/9/7 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 4.5 if the altitude of a bigger triangle is 4.5 then find the corresponding altitude of smaller triangle। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो दैट मीन्स हमने तो क्या लर्न किया है, हमने लर्न किया है कि एरिया ऑफ ये तो दिस इज थियरम कि जितने भी साइड हैं उसके स्क्वायर के बराबर होगा, या अल्टीट्यूड के केस में है तो अल्टीट्यूड का भी वो सिमिलर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ दिस एरिया ऑफ, सो दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू, अल्टीट्यूड क्या है, लेट्स टेक बिगर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ए एम है ना, ए एम स्क्वायर हो गया, एंड जिसका अल्टीट्यूड डी एन स्क्वायर हो गया। सो बाय दिस वे, है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, एंड दिस इज बाय दिस, ये तो गिवन था, इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन। ठीक है, एंड इफ दिस इज गिवन दैट मीन्स वी कैन राइट दिस 9/7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बिगर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इज गिवन, दिस इज 4.5, है ना, 4.5 का स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज स्मॉलर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इज गिवन, दिस इज द डी एन का स्क्वायर। सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो दिस विल बी हाउ मच, तो ये तो कितना हो गया, दिस विल बी डी एन कितना हो गया, सो डी एन विल बी 4.5/7/9 हो गया, है ना। तो ये दिस इज 2 एंड दिस विल बी 3.5। So the dn is altitude of smaller triangle will be how much? This will be 3.5 centimeter. Right? समझ में आ गया, है ना। So how we can find the altitude of smaller triangle? So simply what you use, हमने यूज़ किया है theorem जो हमने लर्न किया, so that theorem we have used, application of that theorem we have used in this question। ठीक है, so by that way we find the area of a smaller and bigger triangle। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आया तो let's move to next question। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन ए साइड ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले तो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो लेट्स ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा कुछ, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल लेट्स टेक दिस इज ए, दिस इज बी, सी है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब टू साइड्स इक्वल होंगे। तो टू साइड मान लो कि ये साइड x है तो ये साइड भी x हो गया, बिकॉज दिस इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये वाली साइड कितना होगा, तो ये वाली दिस इज पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। बेसिकली ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2x होगा। इस साइड का लेंथ क्या हो गया, तो दिस साइड का लेंथ हो गया अंडर रूट ऑफ 2x, है ना, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमने साइड निकाल लिया। अब क्या दिया हुआ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है एक साइड पे। इफ दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये मान लो ये एंगल D है, सो दिस ये साइड क्या है, ये साइड भी x हो जाएगा, ये साइड भी x हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना। ये साइड दोनों साइड बराबर हो गए, है ना। और क्या दिया हुआ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है हाइपोटेन्यूज पे, तो लेट्स टेक दिस इज M। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका साइड क्या हो, इसका साइड का लेंथ क्या होगा, तो ये इतना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x। समझ में आया, है ना।
देयर वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल पहले था जो कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब टू साइड्स वर इक्वल। इससे हमने ये लेंथ निकाली है AC लेंथ। तो AC लेंथ हाइपोटेन्यूज पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है और किसी एक साइड पे, चाहे इस साइड पे ड्रॉ कर लो या साइड पे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स, है ना। इससे दिखता है 3 ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। 3 ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? सो यू कैन सी देयर इज 3 ट्रायंगल्स नाउ। एक तो दिया हुआ था, पहला था राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABC। ABC क्या था? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है। सो बाय दैट वे वी फाइंड आउट AC। हमने उससे क्या निकाला? AC निकाला। AC वी गॉट √2x, ठीक है। अब किसी एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इस साइड पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। सो दैट ट्रायंगल इज DAB। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल 3 साइड्स आर इक्वल दैट इज x, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ उसके हाइपोटेन्यूज पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ है। दैट ट्रायंगल इज ACM। ACM है ना, दैट इज M। इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इज दैट इज 2x, है ना। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से दिस वाज ऑल, एवरीथिंग वाज गिवन इन द क्वेश्चन। हमने क्या किया? बस इसका x का वैल्यू निकालते चले गए, ठीक है। सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन। नाउ व्हाट इज इक्विलेट? अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दिस triangle DAB and triangle ACB are equilateral triangle. क्या क्या है? So triangle, now we have triangle DAB and triangle AMC. So both are what? Both are equilateral triangle, and both are equilateral triangle है, मतलब ये तो equiangular भी हो गए, means this is also a equiangular triangle। इनके सारे एंगल्स बराबर होंगे, डेट मीन्स इसके एंगल D विल बी इक्वल्स टू एंगल M होगा, है ना। और क्या होगा? एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल A होगा इसका, एंड एंगल दिस B विल बी इक्वल्स टू एंगल C होगा, विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मीन्स अगर ऑल एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो बराबर हैं, तो मतलब बोथ द ट्रायंगल्स क्या हैं? ट्रायंगल DAB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल MAC, है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मतलब ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर, एंड बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स अगर मैं इनका एरिया का अगर स्क्वायर निकाल लूँ, तो वो अगर दोनों, मतलब इनका एरिया का रेशियो निकालूँ, मतलब इफ़ आई फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB और इनका रेशियो निकालूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट ACM, इनका अगर रेशियो निकालूँ तो इनके साइड का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। वो क्या होगा? साइड क्या है? दिस इज साइड, लेट्स टेक दिस साइड, एक साइड ले लो कोई भी, तो DA स्क्वायर होगा, रेशियो ऑफ क्या बनेगा? तो AC स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इस तरीके से होगा। ये हमने थ्योरम में लर्न किया है। एंड दिस ऑल्सो भी इक्वल्स टू, दूसरा साइड ले लो, सो दिस विल बी DB स्क्वायर होगा, एंड अपॉन ऑफ क्या होगा? सो दिस विल बी CM स्क्वायर होगा। और तीसरा साइड ले लो तो इसके भी इक्वल होगा, तो तीसरा साइड इज दिस AB स्क्वायर, तीसरा साइड इज AB स्क्वायर अपॉन ऑफ क्या होगा? तीसरा साइड दिस इज AM स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, है ना, बिकॉज बोथ द, है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा। और अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा तो व्हाट इज द DA? सो DA इज x स्क्वायर, है ना। कोई भी एक साइड, सब सारे साइड तो इक्वल है, तो x स्क्वायर हो गया। एंड दूसरे ट्रायंगल का एक साइड क्या है? दैट इज द √2x, इसको स्क्वायर कर दो, सो दिस विल बी कितना बनेगा? सो दिस विल बी x स्क्वायर, ये क्या होगा? सो दिस विल बी x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर गॉट कैंसिल, सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 1/2। So by that way, what we can say, area of triangle this upon of ratio of area of triangle this and ratio of triangle of area of this is what? Is half. Half is the area of equilateral triangle described on hypotenuse. Therefore, what we can say, the area of triangle DAB upon of area of a triangle is ACM is how much? Is the half. ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आया तो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक क्या था इसमें, हमने अप्रोच क्या किया? तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन बेसिस ऑफ दैट थिंग वी फाइंड आउट AC पाइथागोरस थ्योरम से, एंड देयर आफ्टर हमने 2 ट्रायंगल को डिस्क्राइब कर दिया, एक हाइपोटेन्यूज पे एंड एक किसी अदर साइड पे। देयर आफ्टर हमने देखा कि बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर देयर एंगल्स आर इक्वल, सो व्हाट वी कैन से देयर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स।
and if both the triangles are similar, that means area of both the triangles, ratio of area of both the triangles will be equals to square of their corresponding sides का ratio होगा, that will be equal. So that we got, and we got 1/2. By that way we prove this question. ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो you can take the screenshot of this question and let's move to next question. चलो देखते हैं what is the next. So next question we don't have, but I think understanding regarding the area of a ratio of a triangle ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. So if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get the regular updates regarding all the classes of Maximus. So by the meantime, bye bye to all of you. चलो let's keep learning. Please like, share, subscribe the channel. Thank you.